أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الماعون اس کی آیت نمبر 4 اور 5 اللہ فرماتے ہیں کہ ویل، بربادی اور جہنم کی ایک وادی ایسے نمازیوں کے لیے ہے جو کہ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہنم کافروں کے لیے ہے، تو اہل اسلام جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر سستی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کی ایک وادی ہے، تباہی اور بربادی ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف ایمان لے آنا، ایمان کا دعویٰ کر لینا کہ ہم تو پکے مومن ہیں، ایسے کام نہیں چلنا۔ کام کیسے چلنا ہے؟ جب عمل صالح ہوگا، جب نیک اعمال کریں گے، جب 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، تب کام کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہونا کہ مرضی آئی تو پڑھ لی، مرضی آئی تو نہ پڑھی۔ کوئی دوستوں کی محفل لگی ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہو گئے تو آگے پڑھ لی۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ جی چاہے تو کر لی، جی چاہے تو نہ کیتی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مومن کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کبھی 2 کٹھیاں پڑھ لیا، کبھی 3 کٹھیاں پڑھ لیا، کبھی 2-3 پڑھ لی، کبھی 1 دو رہ گئی، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ہو رہی جو پکے پکے جہنم والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی بات ہوتی ہے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، تباہی اور بربادی اور جہنم کی ایک وادی ایسے نمازیوں کے لیے ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ غفلت یہی ہوتی ہے نا کہ سوئے ہے تو سوئے رہے۔ جب بندہ رات کو 12 بجے سوئے گا تو پھر فجر کو کیسے جاگ آئے گی؟ نہیں جاگ آتی۔ جب بندہ اپنے دکان پہ بیٹھا رہتا ہے تو اسی کو غفلت کہا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کا پورا پابند ہو جائے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ ہم میں سے صحابہ کرام میں سے کچھ واپس چلے گئے، کچھ اگلی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام دوبارہ تیزی سے آئے۔ جب اگر تیزی سے آتا ہے کوئی سانپ پھولا ہوتا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا تھوڑا سا مزید پکڑا اوپر کیا ہوا اور جلدی آتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہے، اور دروازہ کھول کے آسمان کے دروازوں میں سے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ بندے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیٹھنے پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں کہ میرے بندے کتنے اچھے ہو۔ تو یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو نماز مرضی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب نیند پوری ہو گئی تو پھر اٹھے، جب دفتر کا ٹائم شروع ہو گیا اس سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، پاجن اٹھ کے وضو کیتا، 2 رکعتاں پڑھیاں، 4 رکعتاں پڑھیاں، پھر جلدی ناشتہ کیا اور تیار ہو کے بابو بن کے اپنے آفس چلے گئے۔ حضرات، ایسے کام نہیں چلنا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم کی ایک وادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتنے والے ہیں، ایسے لوگ جہنم کی وادی میں چلے جائیں گے۔ تو حضرات،
नमाजें 5 की 5 पढ़नी चाहिए, बावकत पढ़नी चाहिए, बाजमात पढ़नी चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें बताऊं कि मुनाफिक की नमाज कौन सी है। मुनाफिक की नमाज वो होती है कि असर की नमाजें हो गई, बैठा रहा, उसके बाद जब बिल्कुल सूरज गुरूब होने के बिल्कुल करीब आता है, भागा भागा आया, तेज़ तेज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 ठूंके मारता है। 4 रकातों का लफ्ज़ वहां नहीं है, वहां हदीस के लफ्ज़ है फनकरा अर्बअन, जैसे मुर्गा जल्दी जल्दी ठूंके मारता है, इसने भी जल्दी जल्दी 4 रकातें पढ़ी, वापस गया। फरमाया कि ये मुनाफिक की नमाज है। अब आज किसी बंदे को कह के देखो ना कि तू तो मुनाफिक है, सिर और देगा, लड़ाई हो पड़ती है ना कि तुम मुनाफिक क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है कि ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम की एक वादी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो नमाज बैठा रहता है, सूरज गुरूब होने के करीब आता है, वो नमाज पढ़ता है, तेज़ो तेज़ पढ़ लेता है, फरमाया कि ये मुनाफिक की नमाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस नमाज को मुनाफिक की नमाज पढ़े कहें, अगर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बड़ा मुशाहदा किया है कि कई दफा मगरिब की नमाज के लिए तैयारी करने जाए, वुज़ू वगैरह कर रहे हो, तो कुछ भाई उस वक्त आ रहे होते हैं, लगता है कि मगरिब की पहली साफ से आए हैं, हालांकि हकीकत ये होती है कि चौधरी साहब की असर की नमाज रहती है। तो ये इतनी नमाज को लेट करके पढ़ना, ये वो है जो कि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजों के अंदर गफलत बरतने वाले हैं। ये वो नमाज है जिसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन की नमाज है। मोमिनीन की नमाज क्या है? इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। मोमिनीन की नमाज क्या है? जो वक्त मुकर्रर पर पढ़ते हैं, जब वक्त शुरू हो जाता है फिर वो नमाज नहीं छोड़ते, कोई भी काम है सब कामों को पीछे कर देते हैं, नमाज के लिए उठाते हैं। सुनन अबी दाऊद में रिवायत है, हदीस नंबर 1420, सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खम्सु सलावातिन कतबहुन्नल्लाहु अलल इबाद, अल्लाह ने बंदों के ऊपर 5 नमाजें लिख दी हैं। फमन जाअ बिहिन्ना लम युज़य्य मिनहुन्ना शैअन इस्तिग़फ़ाफ़न बिहक़्क़िहिन्ना, जिस बंदे ने किसी नमाज को ज़ाय नहीं किया, किसी नमाज को हक़ीर नहीं जाना, कमतर नहीं जाना। कमतर जानने का मतलब ये होता है ना, बैठे तो बैठे रहे, कोई बात नहीं, ये नमाज को कमतर जानने की बात है। तो कान लहु इंदल्लाहि अहदुन अन युदखिलहुल जन्नता, जो बंदा बिल्कुल नमाज में सुस्ती नहीं करता, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा नमाज का पूरा पाबंद है, फिर अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया है कि अल्लाह इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देगा। वमन लम याति बिहिन्ना, और जो पाबंदी के साथ नहीं पढ़ता, जो नमाजों को ज़ाय कर देता है, फलैसा लहु इंदल्लाहि अहदुन, अल्लाह का ऐसे बंदों के लिए कोई वादा नहीं है। मुसलमानों वाला नाम रखो, मुसलमानों के घरों में रहो, कोई अल्लाह का वादा नहीं है। जो बंदा नमाजों के अंदर सुस्ती करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के ऐसे बंदे के साथ कोई वादा नहीं है तो उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इंशाअ अज़्ज़बहु व इंशाअ अदखलहुल जन्नता, अगर अल्लाह चाहे उसे अज़ाब दे देगा, अल्लाह चाहे तो उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। जन्नत में जाने का वादा उस बंदे के लिए है जो पक्का नमाजों का पाबंद है, जो 5 नमाजें हर काम को छोड़ देता है, हर चीज को पीछे कर देता है, जो वो नमाजों का पक्का पाबंद हो जाता है, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ने जुम्मा ले लिया है, उसे मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सहीहुल जामे में एक रिवायत है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लकुन कदरना उरल इस्लाम उरवतन उरवतन, इस्लाम के कड़ियां, ये इस्लाम के रस्से की कड़ियां, वो एक एक करके कड़ी टूटती जाएगी। पहले एक कड़ी टूट गई, फिर आखिर टूट गई, फिर उससे टूट गई। फअव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म, सबसे पहली कड़ी वो इस्लाम के मुताबिक फैसले करने हैं। जब इस्लामी रियासत के अंदर इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं किए जाते, तो वो इस्लाम की कड़ियों में पहली कड़ी वो रियासत तोड़ देती है। उसके बाद बाकी कड़ियां टूटती गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वआखिरुहुन्ना अस्सलातु, और वो जो इस्लाम की कड़ियां हैं उनमें आखिरी कड़ी जो है वो नमाज की है। तो आस्ता आस्ता करके लोग इनको तोड़े जा रहे हैं और आखिरी कड़ी जो नमाज
कड़ी रह गई है उसको भी तोड़े जा रहे हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 102 में ना अल्लाह ताला ने फरमाया वा इज़ा कुनता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस्सलाता, जब जंग हो रही हो आप फिर भी जंग के दौरान आप नमाज खड़ी कर दें, फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका, एक जमात आपके साथ आ जाए, वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम, नमाज के साथ उन्होंने अपने असले भी पकड़े हों, फ़इज़ा सजदू, जब वो सजदा कर लें, फलयकूनु मिन वराइकुम, जब वो एक रकात उनकी पूरी हो जाए उसे मुकम्मल करके वो पीछे चले जाएं, वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू, फिर दूसरी जमात जो दुश्मनों के साथ लड़ रही थी फिर वो आ जाए, फलयुसल्लू मअका, वो आपके साथ बाकी नमाज पूरी कर लें। नमाज के अंदर रुखसत हो गई है, छुट्टी नहीं है, जंग लगी है, नमाज के अंदर छुट्टी नहीं है। वलियअख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम, अपना बचाव का सामान और अपना असलहा जो भी जमात आती है वो अपने पास रखे। तो ये कितनी बड़ी ताकीद की बात है। अल्लाह फरमाते हैं वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम, काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम अपने असले से भी गाफिल हो जाओ और तुम अपने साजो सामान से भी गाफिल हो जाओ। तो हज़रात ये इस मौके की बात है, ये जंग की बात है। जंग के अंदर भी नमाजों के लिए ये नहीं कहा कि चलो जब जंग खत्म हो जाएगी उसके बाद 2 रहती हैं 4 रहती हैं तो आप इकट्ठी पढ़ लिया करो, नहीं। जब जंग के अंदर बिल्कुल ऐन हालत जंग में आपने असले पकड़े हुए हैं, आपका दुश्मन सामने है, वो भी तीर तलवार चलाता है, एक जमात खड़ी रहे, दूसरी जमात अपनी नमाज पढ़ ले, वो उधर जाके दुश्मन के सामने खड़ी हो जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आके नमाज पढ़ लें। हज़रात जंग के अंदर भी नमाज की छुट्टी कोई नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये काफिर तो चाहते हैं कि तुम अपने असलहे से और अपने साजो सामान से बेखबर हो जाओ। हज़रात बड़े अफसोस की बात है कि जंग के अंदर छुट्टी नहीं है और हमारी पूरी कौम जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की जंग होती है ना तो हर चीज भूल जाती है, नमाजों को भी भूली होती है, अम्तिअतिकुम अपने कारोबार को भी भूली होती है, हर चीज को कौम भूल जाती है। ये आप कभी बाजारों में जाए ना तो कोई रश नहीं होता, क्या बात बनी है, सारी कौम टीवी में बैठी मैच देख रही है। ये वो बातें हैं, जंग के अंदर कोई छुट्टी नहीं है और कौम हर चीज की छुट्टी करके मैच देखने बैठ जाती है। उस मैच में एक नमाज जाती है, दूसरी नमाज जाती है, जुमा जाता है, जो कुछ भी जाता है चला जाता है, लेकिन कौम मैच को नहीं छोड़ती। ये तो अल्लाह का शुक्र करें कि आपकी कौम के सबूत, आपके कौम के शाहीन, वो आपकी पाक फजाइला के शाहीन, वो अपने असले से गाफिल नहीं है। जब भी कोई अभिनंदन आता है ना तो उसे वो चाय पिलाने के बगैर नहीं वापस भेजते। कौम के ये नौजवान ये जाग रहे हैं, हज़रात पूरी कौम को जागना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि वद्दल्लज़ीना कफ़रू, काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम अपने असले से भी गाफिल हो जाओ, तुम अपने साजो सामान से भी गाफिल हो जाओ, तो पूरी कौम कोई मैच लगा लो फिर अपने हर चीज से गाफिल हो जाती है। सुनन इब्न माजा में रिवायत है, हदीस नंबर 2698 2698। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही कहा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, कहते हैं काना आखिरु कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, नबी अलैहि सलाम फौत होने लगे थे, फौत होने से आखिरी जो कलमा नबी अलैहि सलाम ने जो वसीयत की ना, आपने फरमाया कि नमाज का भी ख्याल करना और गुनाहों का भी ख्याल करना। आखिरी वक्त में भी नबी अलैहि सलाम ने आखिरी बात वही फरमाई कि लोगों नमाज का जरूर ख्याल करना, तो नमाज का ख्याल करते नहीं है। सही बुखारी में रिवायत है, हदीस नंबर 657, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए फजर की नमाज और असर की नमाज से कोई चीज भारी नहीं है। मुनाफिकीन के लिए फजर की नमाज बड़ी मुश्किल होती है और असर की नमाज बड़ी मुश्किल होती है। फजर में सोए हुए हैं, नहीं उठते, असर में अपना बिजनेस पीक पे है, नहीं उठते, गाकी आ रही है जा रही है, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, फजर की नमाज सोए हुए गुजार देता है और असर की नमाज वो अपने कारोबार में गुजार देता है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के फरिश्ते फजर में भी आते हैं और असर में भी आते हैं। जब फजर में आए ना
تو وہ असर तक रहते हैं। अभी असर वाले अभी ये फजर से असर वाले अभी गए नहीं, ऊपर से असर वाले और जिन्होंने रात गुजारनी है वो इकट्ठे हो जाते हैं असर के वक्त भी और अगली फजर के वक्त भी। जो असर के वक्त आए वो शाम तक रहते हैं, रात तक रहते हैं, और उसके बाद जब फजर होने लगती है वो भी मौजूद होते हैं, और फिर जिन्होंने अगले दिन की ड्यूटी करनी होती है वो भी आ जाते हैं। तो फजर और असर के वक्त ये फरिश्ते भी हाजिर हो जाते हैं। जब वो वापस जाते हैं अल्लाह को सारा ही पता है, लेकिन जाकर रिपोर्ट करते हैं कि या अल्लाह जब हम गए थे ना तब भी नमाज पढ़ रहे थे, जब हम आए थे तब भी ये नमाज पढ़ रहे थे। तो जरा अपने बारे में सोचिए ना कि फरिश्ते क्या रिपोर्ट पेश करते होंगे कि या अल्लाह जब गए थे तब ये गहरी नींद सो रहे थे, या अल्लाह जब हम आए हैं उस वक्त मैच देख रहे थे, ना फजर पढ़ी ना इन्होंने असर पढ़ी, फजर के वक्त भी गाफिल रहे, असर के वक्त भी गाफिल रहे। तो हज़रात फरिश्ते आते हैं, रिपोर्टें अल्लाह ताला को देते हैं, और अल्लाह फरमाते हैं कि वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह हर चीज लिख रहा है, आखिर में हर चीज का सवाल उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल ये करता है, ये सही बुखारी के हदीस नंबर 657 जो आपने शुरू की है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जी ये चाहता है कि जब नमाज का वक्त हो जाए फिर मैं हुक्म दूं को बंदा अजान कहे, उसके बाद इकामत कही जाए, इकामत होने के बाद मैं नमाज के लिए किसी और बंदे को खड़ा कर दूं, कुछ बंदों को मैं लेकर चला जाऊं जो अभी तक मस्जिद में नहीं आए, मैं उनके घरों को जला दूं। अगर आप ये कितनी संगीन बात है, कितनी सख्त बात है कि उनके घर ही जला दिए जाते, आज ये सारे बाजार जल जाते, सारे घर जल जाते। जब मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, बाजार खुले हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, लोग घरों में सोए हुए हैं, चौराहों में बैठे हुए हैं, बैंकों के सामने बैठे हुए हैं, मैचों में हैं, पार्कों में हैं, हर जगह पे चले जाते हैं, नमाज के लिए नहीं आते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहुर्रिका अला मन ला यखरुजु इला सलाति बाद, जो अभी तक नमाज के लिए नहीं आया उसका मैं घर जला दूं, मेरा तो ये जी चाहता है। आपने ये नहीं फरमाया कि जो पक्के बेनमाज हैं उनका घर जला दूं, जिन्होंने आना था लेकिन अभी तक नहीं आए, जब नमाज का वक्त हो गया अभी तक बैठे हुए हैं, अभी तक गाफिल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अभी तक नहीं आया मेरा जी चाहता है कि उनके घरों को जाकर जला दूं। सही मुस्लिम में रिवायत है, हदीस नंबर 654 हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मन सररहु अन यल्क़ल्लाह गदन मुस्लिमन, जो बंदा ये चाहता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को इस्लाम की हालत में मिले, फल युहाफिज़ अला हाउलाए सलावाति हैसु युनादा बिहिन्ना, फिर जब अज़ान कही जाए फौरन नमाज के लिए आ जाया करो। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के लिए इस्लाम के लिए हिदायत के रास्ते लिख दिए हैं, उन्होंने आगे बता दिए हैं, और फरमाया वइन्नहुन्ना मिन सुननिल हुदा, हिदायत के रास्तों में से नमाज के वक्त आ जाना वो भी हिदायत के रास्तों में है। और फिर फरमाया वलौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम कमा युसल्ली हाज़ल मुतकल्लिफु फी बैतिही, अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो जैसे ये नमाज से पीछे रहने वाला गाफिल बंदा, जैसे ये नमाज जब जी चाहा घर में जमातें हो गई हैं, उठा घर में 2 रकातें पढ़ी, 4 रकातें पढ़ी, दफ्तर चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुमने ऐसे किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं फरमाया कि ला तरक्तुम सुन्नत नबीय्यिकुम, तुमने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़ दिया है। सुन्नत क्या है? मस्जिद में आके नमाज पढ़ना। अगर तुम घरों में नमाज पढ़ने लग गए, वलौ तरक्तुम सुन्नत नबीय्यिकुम ला ज़ललतुम, और ये जिस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को छोड़ दिया वो बंदा गुमराह हो जाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अच्छी तरह वुज़ू करता है फिर मस्जिद में आ जाता है तो उसका एक एक कदम उठाना अल्लाह ताला उसके लिए नेकियां बढ़ाता रहता है। इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतबतिन यख्तुहा हसनतन, अल्लाह ताला हर कदम उठाता है एक नेकी लिख देता है। वयरफअु बिहा दरजतन, और साथ एक दर्जा भी बुलंद कर देता है। वयहुतु अनहु बिहा सय्यअतन, और साथ एक अल्लाह गुनाह भी माफ कर देता है। तो एक कदम उठाने से कितने दर्जात मिल रहे हैं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने देखा सहाबाए किराम के ज़माने में जो नमाज से पीछे रहता था वो पक्का मुनाफिक होता था, पक्के मोमिन सारे नमाज के लिए आ जाते थे। यहाँ तक कि एक बंदा वो आ नहीं सकता, वो कमजोर है, वो माजूर है,
اسے پکڑ کر اس نے 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لیا ہوتا، ایک بازو ادھر رکھا ہے ایک بازو ادھر رکھا ہے، اسے ایسے کھینچ کے لا رہے ہیں، وہ ریگتا اس کے پاؤں نیچے رگڑتے آتے اور وہ آگے مسجد میں سامنے کھڑا ہو جاتا۔ تو حضرات یہ ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ چل بھی نہیں سکتے، جو معذور ہیں، اس کے باوجود وہ گھسٹ کے سہارا لے کر لوگوں کے ساتھ ان کی سپورٹ لے کر وہ